Hello aspirants, welcome. Today in this session, we will be learning about balanced chemical equation. If you are curious, you must be thinking, why do we balance the chemical equation? What happens if we do not balance the chemical equation? If you remember in class 9th, we have learnt about law of conservation of mass, which says in any chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed. It means the mass in reactant side must be equal to product side. So to validate this law, we must balance the chemical reaction. Now the second question arises from here is that how do we come to know that a chemical reaction is balanced or not? We simply count the number of elements in both sides, that is in reactant side and in product side. If the number of elements in reactant side is equal to the number of elements in product side, means the reaction is balanced, and if not, the reaction is not balanced. When the reaction is not balanced, it is called a skeletal chemical reaction, and the reaction is balanced, it is called balanced chemical reactions. Let us take few examples to understand it clearly. I have taken here the example of magnesium, the reaction of magnesium with the oxygen molecule. When the magnesium atom reacts with the oxygen molecule, it gives magnesium oxide. Here the number of magnesium atom in reactant side, when we write a chemical reaction, we place the arrow and both side of arrow, that is left side of arrow is called reactants and the right side of arrow is called product. So in reactant side the number of atoms of magnesium is 1 and the number of oxygen atom is 2, but in product side the number of magnesium atom is also 1 and the number of magnesium atom is 1. Now if you compare here, the magnesium atom in both sides is same, 1 and 1, but the oxygen atom in both sides is not same. Here in reactant side the number of oxygen is 2 and the product side number of oxygen atom is 1, so it must be equal. So to equate it, what we do, we simply multiply in product side where oxygen is present with 2. How do we write 2 in the reaction? We first cover the product in box and write 2 in front of box. So when we write 2 in front of box, here 2 is multiplied with O, so I multiply 2 with O here, so 1 into 2 becomes 2. But if you see here, 2 also multiplied with the magnesium also, so we have to multiply 2 with magnesium in product side also, so 1 into 2 is equal to 2. Now if you see, magnesium becomes unbalanced because in product side magnesium is 2 and the reactant side magnesium is 1, so we must equate it also. So we multiply magnesium in reactant side with 2 also, it becomes 2. So 2 magnesium, how do we write in reactant side? It we multiplied magnesium with 2, we write 2 in front of box. Now if you see 2 magnesium, 2 MgO, which is in solid state, plus oxygen gas reacted, and it will give 2 times MgO solid. Now it is an example of balanced chemical equation. If you count the number of elements in both sides, it will be same. Now if you see in this example, here the 2 different reactants, magnesium and oxygen, combine together to form a single product. So such reactions are called composition or combination reaction. When 2 or more than 2 different reactants combine together to form a single product are called combination reaction. I have written here also. Now let us take another example. चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. यहाँ पे लेड नाइट्रेट ब्रेकडाउन हो रहा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में. यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं. अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड काउंट करेंगे. तो यहाँ पे लेड जो है वो 1 है, नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के बाहर में 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 होगा. अगर किसी चीज़ को हम लोग इस तरह से लिखें, मान लो CaOH ट्वाइस लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ब्रैकेट के अंदर में जो है, ये जो बाहर में 2 है, ये दोनों पे इफेक्टिव है, मतलब ये ऑक्सीजन भी 2 होगा और हाइड्रोजन भी 2 होगा. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे. तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन, चूँकि ब्रैकेट के अंदर में 3 ऑक्सीजन है और बाहर में 2 है, तो 2 × 3 6. अगर प्रोडक्ट साइड बात करें तो लेड 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 5 है, तो 1 + 2 + 2 इस तरह से लिखते हैं.
+2 और नाइट्रोजन यहाँ पे देख सकते हैं 1 है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहला जो हमारा चरण होता है, प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, वो ये होता है कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा है वो कहीं भी हो सकता है, वो रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 6 है जो कि सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 5 था। तो जो सबसे ज़्यादा होगा पहले उसे बैलेंस करेंगे, उसे इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 6 है तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन को 6 करना होगा। तो यहाँ पे 6 करने के लिए हम लोग सिंपली अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड भी करते हैं। हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे +1, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा ऐसे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 होगा, लेकिन अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 2 2 +2 +2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ पे ऑक्सीजन 1 था ना वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसे ब्रेक करके लिखा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इसके पीबी के साथ है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। लेकिन जैसे बॉक्स के बाहर में 2 लिखे, ये 2 पीबी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो जहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जहाँ पे पीबी है 1 है उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट में लेड का 2 आइटम है, हो गया, तो हमें इसे रिएक्टेंट में भी बैलेंस करने होंगे। तो चूँकि रिएक्टेंट में 1 है तो इसे आराम से 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेड भी 2 हो गया, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों पे लेड 2 है। तो यहाँ पे जहाँ पे रिएक्टेंट साइड में पीबी होगा वहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जब पीबी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 अपने आप एन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ये जब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में पहले ही नाइट्रोजन 2 टाइम्स था, अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 ये 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 × 3 6 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन था और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए, इसे बैलेंस करने होंगे। उससे पहले चलिए नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक बार में एक ही जगह पे है और यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, तो इसे 4 करने होंगे हमें। 1 को 4 करने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन 2 लेड 2 लेड 12 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, इसे 12 करने होंगे। तो इसे 12 करने के लिए अब जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नोटिस करें, जब नाइट्रोजन के साथ 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 अपने आप ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। कौन सा ऑक्सीजन? जहाँ पे पहले से 2 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे बीच में पहले से 2 ऑक्सीजन था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 × 8 +2 10 +2 12 4 4 2 2, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखें, जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट अभिकारक, इसे अभिकारक बोलते हैं जो रिएक्टेंट साइड में होगा, और उत्पाद बोलते हैं प्रोडक्ट साइड को। एक सिंगल अभिकारक रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हमें मिलेंगे, लेकिन ये भी एक तरह का डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी डिफरेंट रिएक्शंस डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और रेडॉक्स रिएक्शंस होगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।